Assalamu alaikum. In the course Plant Systematics, today we will study family Apiaceae. It is also known as umbelliferae, the old name. Commonly it is also known as carrot family or the dill family. Distribution. The plant of this family are cosmopolitan in their distribution. However, they are not found in Arctic regions. They are very commonly found in northern temperate regions. In the tropical countries, they are either found in hilly tracts or cultivated in the winter season. Majority of the plants are of economic value and many grow as weeds. In our country, the family is represented by several important species such as Coriandrum, Stivum, Dhania, Feniculum vulgare, Saunf, Daucus carota, carrot or gajar. By habit, majority of plants are annual, biennial or perennial herbs. Sometimes shrubs and under shrubs are also found. For example, Bupleurum falcatum is an undershrub. Pseudocarum is a climbing plant. General characters. The root is usually tapped and branched. Stem is herbaceous, usually erect, rarely climbing. It becomes fistular at maturity on account of the shrinkage of pith. The nodes and internodes are quite distinct. The stem is usually green and becomes pinkish as the plant matured. The stems are very often ribbed and angled. Then leaves. Leaves are alternate, exstipulate, amplexicol. Amplexicol means a leaf that embraces and nearly surrounds the stem, having a large base that encircles the stem. And the leaves are much dissected, pinnately compound. Sometimes leaves are simple. Some species have parallel venation in the leaves and sheathing bases like many monocotyledonous plants. Oil glands are present in all the aerial parts of the plants. So oil is also extracted from the plants, like you know about धनिया का तेल, सौंफ का तेल वगैरह. Essential oils are extracted. Then inflorescence. The inflorescence is umbel. Umbel is a specific type of inflorescence of family Umbelliferae. Compound umbels have involucres and involucelles. Compound umbels are sometimes cymose. Here you can see the leaves. As I told you here that the leaves are pinnately compound. So this is the example of pinnately compound leaves. Here is unipinnate leaves एंड इसका जो पिन्ना है सिर्फ 1 टाइम्स डिवाइडेड है. ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एक्सिस है दिस इज रैकिस एंड दीज आर द लीफलेट पेयर्स. इनको हम पिन्यूल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, ये यूनिपिनेट पेरीपिनेट है क्योंकि इसमें टिप पे लीफ प्रेजेंट नहीं है. इसमें टिप पे लीफ है तो दिस इज यूनिपिनेट इम्पेरीपिनेट. ठीक है, ये इसके लीफलेट्स हैं और ये सेंट्रल रैकिस है. इस तरह का जो यूनिपिनेट पेरीपिनेट लीफ है ये अमलतास में मिलता है. इस तरह का जो है ये आपको नीम बकाइन वगैरह में मिलता है. और बायपिनेट, इसमें आप देखें कि लैमिना जो है वो एक दफ़ा तो ये लीफलेट्स में डिवाइड हुआ, आगे ये जो लीफलेट्स हैं ये दोबारा से डिवाइड हो गए हैं फिर से. ठीक है, अब ये पिन्यूल्स बन गए हैं. दिस इज पिन्ना और ये पिन्ना अगर फिर से डिवाइड होगा तो ये पिन्यूल्स कहलाएंगे. ठीक है, ये लीफ ब्लेड डिवाइड होगा तो पिन्ना जो इसके लीफलेट्स हैं वो पिन्ना कहलाएंगे. और जब ये
पिन्ना जो है ये डिवाइड होंगे तो फिर ये पिन्यूल्स कहलाएंगे, उनके जो आगे लीफलेट्स हैं, ठीक है। ये मेन पिट्यूल है और ये रेकिस है। अब ये अगर ये पिन्यूल्स भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तो फिर ये आप देखें कि ये दिस इज ट्राइपिन्नेट लीफ, और अगर ये जो ट्राइपिन्नेट लीव्स हैं इनके ये जो लीफलेट्स हैं ये मज़ीद डिवाइड होते हैं, देन डी कंपाउंड लीफ बनता है। और आपने देखा है धनिया में और सौंफ में और गाजर में इस तरह के लीव्स आपको नज़र आते हैं, दोज आर डी कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो इसमें पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं यूजुअली इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ठीक है। अब जो हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी है दैट इज अम्बल। अब अम्बल जो है सिंपल अम्बल भी हो सकती है, दिस इज कंपाउंड अम्बल। ये थोड़ी ब्लर डायग्राम है लेकिन इसमें जो है ना इलस्ट्रेशन अच्छी दी हुई है इसलिए मैंने ये लगाई है। इसमें आप देखें सिंपल अम्बल में ये जो नीचे है ये आपको ब्रैक्ट्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द इन्वोल्यूकर्स। इन्वोल्यूकर्स जो है ये इसकी ब्रैक्ट्स हैं दो, जो कि यहाँ मेन अम्बल के बेस पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब फिर इन्वोल्यूकर तो ये है, ठीक है। इसका आगे जो कंपाउंड अम्बल में ये हर पार्ट जो है ये फिर से डिवाइड हो जाता है, आगे फिर से एक अम्बल बनाता है, ठीक है। ये इसकी बेस पे फिर आप देखें कि ये जो अब ब्रैक्ट्स हैं दीज आर नोन एज इन्वोल्यूसेल्स, दिस इज इन्वोल्यूकर, दिस इज इन्वोल्यूसेल्स, ठीक है। अब ये जितना डिवाइड होता जाएगा उतना मज़ीद मतलब ये उतना कंपाउंड होता जाएगा। दिस इज सिंपल अम्बल। इसमें आप देखें ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यंगेस्ट जो है वो सेंटर में है। अब यहाँ पे समटाइम्स इसमें ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड अम्बल्स में जो सेंट्रल फ्लावर है वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। जिस तरह ये सेंट्रल फ्लावर है ये नहीं सेंट्रल एक्सिस जो है ये मज़ीद अभी डिवाइड नहीं हुआ, ये साइड वाले थे ये डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन, और ये जो 2 है फिर ये और इधर 3 होगा, ठीक है। अब ये जो 2 है ये फिर उसी तरह रह गया और इसके साइड वाले फिर डिवाइड हो गए, ठीक है। अब ये 3 है, ये फिर 4 1 है। तो दिस इज़ द एक्चुअल रियल पिक्चर ऑफ कंपाउंड अम्बल। ये आप देखें कि यहाँ से एक अम्ब्रेला बनी, ठीक है, अम्ब्रेला शेप है ना, यहाँ से आप ये अम्ब्रेला की टिप आप समझ लें जो हमारी अम्ब्रेला होती है, ठीक है। और ये जो यहाँ से फिर आपको ये छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये सिंपल अम्बल नहीं है बल्कि ये क्या है, कंपाउंड अम्बल है। दिस इज अ कंपाउंड अम्बल ऑफ कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंड्रम स्टाइवम का कंपाउंड अम्बल है ये। नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टर्स। फ्लावर्स आर यूजुअली hermaphrodite. Hermaphrodite mean both male and female sexes are present on the same flower. Sometimes unisexual भी हो सकते हैं कि एक फ्लावर जो है वो जस्ट मेल या फीमेल होगा, उस पे बोथ मतलब एंड्रोशियम और गैनोशियम बोथ प्रेजेंट नहीं होंगे या फंक्शनल नहीं होंगे। रेगुलर होता है फ्लावर यानी एक्टिनोमॉर्फिक है, इसको किसी भी प्लेन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। समटाइम्स इरेगुलर भी होता है, जाइगोमॉर्फिक यानी इसको हर प्लेन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। पेडिसिलेट, पेडिसल प्रेजेंट है, हमने पिछली डायग्राम में देखा। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट हैं जो इन वॉल्यूकर और इन वॉल्यूसेल्स हैं, दोज आर ब्रैक्ट्स। देन द फ्लावर इज कंप्लीट, ठीक है, मेल फीमेल पार्ट्स भी हैं, मतलब सारे जो इसेंशियल पार्ट्स हैं फ्लावर्स के वो इसमें हैं। एपिगाइनस, एपिगाइनस मीन्स द ओवरी इज enclosed in the receptacle with the stamens and the other floral parts like calyx and corolla are situated above, ठीक है। Then calyx consists of 5 minute sepals, odd one being posterior. Sometimes sepals are absent in many species. Corolla has 5 petals, polypetalous, white और yellow color के हो सकते हैं। Petals size varies from species to species. 2 petals are larger than the other 3 in some species. Reflexed tips का मतलब है कि टिप्स जो है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं। Sometimes bifid यानी जो पेटल है वो 2 पार्ट्स में 2 ब्लेड्स में डिवाइडेड होती है, टिप्स से 2 लोब्स में डिवाइडेड होती है।
Estivation is valvate or imbricate. Estivation means arrangement of petals and sepals in a flower bud before it opens. यानी इसकी ओपनिंग से पहले बड स्टेज पे जो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल है वो वेलवेट या इम्ब्रिकेट होती है. इसमें वेलवेट क्या है? सेपल्स और पेटल मीट एट एजेस एंड डिड नॉट ओवरलैप. और इम्ब्रिकेट में क्या होता है? सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप. ठीक है, तो इनमें से कोई भी टाइप एस्टिवेशन की यानी बिफोर बड ओपनिंग के वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट हो सकती है. एंड्रोशियम कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेमन्स alternate to the petals. The stamens arise from an epigynous disc. ठीक है, जो कि गाइनोशियम से अबव होगी. The anthers are bilobed, dorsifixed हो सकते हैं या basifixed हो सकते हैं. The filaments are free. The anthers split by longitudinal slits. Gynoecium consists of 2 carpels. बाइकार्पेलरी इसलिए हम इसको कहेंगे. सिन कार्पस यानी फ्यूज्ड होती हैं कार्पल्स. द ओवरी इज इंफीरियर, क्योंकि बाकी जो हमने ऊपर देखा कि बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, चूँकि ये एपिगाइनस है तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो ओवरी से अबव लेवल पे अराइज होते हैं. तो इसका मतलब है कि गाइनोशियम या ओवरी जो है वो हमने ऊपर पढ़ा कि इनक्लोज्ड है इन द रिसेप्टिकल, नीचे है, और बाकी फ्लोरल पार्ट्स इसके लेवल से अबव अराइज होते हैं. तो ऑटोमेटिकली ओवरी इंफीरियर हो गई. ठीक है. बाइलॉक्यूलर यानी 2 चैम्बर्स हैं, 2 लॉक्यूल के लिए चैम्बर्स हैं. ईच लॉक्यूलस कंटेन्स अ सिंगल पेंडुलस एनाट्रोपस ओव्यूल. द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल. nectar disc is present on the top of the ovary, and this is found which surrounds the 2 capitate stigmas. Then fruit is a cremocarp. This is a fruit. धनिए का फ्रूट आपने देखा हुआ होगा, ये उसी की एग्जांपल यहाँ पे बताई हुई है. आप किसी भी इस फैमिली के किसी भी फ्रूट को इससे कंपेयर कर सकते हैं. सौंफ है, ज़ीरा है, व्हाटएवर. द ओवरी स्प्लिट्स इनटू क्रीमोकार्प में क्या होता है? दिस इज ड्राई फ्रूट. ठीक है, जिसमें ओवरी जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकती है. पहले तो आप इस फ्रूट को देखें, इसके ऊपर रिब्स हैं, रिजेस एंड फरोज हैं. 5 रिजेस होती हैं और फरोज होती हैं. जो रिजेस हैं दीज आर नोन एज कोस्टी एंड फरोज आर नोन एज विटी. ठीक है, ये पेडिसिलेट फ्रूट होता है. चूँकि फ्लावर पेडिसिलेट है तो फ्रूट भी पेडिसिलेट होगा. ठीक है, इसको स्प्लिट किया जा सकता है into 2 parts. Each part is known as मेरिकार्प. This is one मेरिकार्प, this is second मेरिकार्प. टिप पे ये स्टाइलोपोड के ज़रिए ये इसके टिप पे ये स्टाइलोपोड प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये जब सेपरेट होते हैं दोनों पार्ट्स तब भी ये स्टाइलोपोड यहाँ पे आप देख सकते हैं. और ये दोनों मेरिकार्प्स जो दोनों पार्ट्स हैं ये ज्वाइंट रहते हैं कार्पोफोर एक सेंट्रल एक्सिस के ज़रिए. ठीक है, धनियों को हम थोड़ा सा रगड़ें तो ये इसके दोनों पार्ट्स अलग हो जाते हैं. थोड़ा सा हम हल्का सा इसको अगर रगड़ दें तो. ठीक है, और ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये अलग होने के बाद जर्मिनेट कर सकते हैं. और मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि चींटियाँ जो हैं वो जब सीड्स कलेक्ट करती हैं, लाइक अगर वो धनिया का या इस तरह का कोई सीड कलेक्ट करती हैं तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं ताकि ये स्प्राउट ना कर सके अंडरग्राउंड. अदरवाइज तो सीड्स स्प्राउट कर जाते हैं ना. वो जो भी सीड लेके जाती हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं ताकि वो स्प्राउट ना कर सके अंडरग्राउंड. और धनिया के सीड को वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं ताकि ये 2 पार्ट्स के बाद भी जो इसकी स्प्राउटिंग हो जाती है तो वो ना हो सके. अदरवाइज तो उनकी फूड सारी स्प्राउट हो जाएगी तो वो खाएंगी क्या विंटर्स में. ठीक है, नेक्स्ट सीड जो है दैट इज एंडोस्पर्मिक हैविंग अ माइन्यूट एम्ब्रियो. पोलिनेशन इज एंटोमोफिलस. एंटोमोफिलस जो है ये इंसेक्ट्स के ज़रिए पोलिनेशन होती है. आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एंटमोलॉजी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, तो उसमें दैट इज़ रिलेटेड टू इंसेक्ट्स. ठीक है, तो एंटोमोफिलस का मतलब वही इंसेक्ट्स से रिलेटेड के इंसेक्ट्स के ज़रिए इसकी पोलिनेशन होती है. इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल कंडेंस्ड अम्बल्स हैविंग आउटर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स.
The nectar secreting disc situated at the top of the ovary is the main attraction of the insects. The flowers are pentandrous and thus pollination is affected. Next, this is floral formula. You can see here, this is the symbol of actinomorphic. We have read that the flower is actinomorphic or sometimes zygomorphic. This is a symbol of zygomorphic, and then male and female both parts are usually present on the same flower, hermaphrodite. So this is the symbol of hermaphrodite. Calyx are 5 and calyx have 5 sepals और 0, या हमने पढ़ा है कि एब्सेंट भी हो सकते हैं सेपल्स, ठीक है. देन कोरोला हैव 5 पेटल्स, C5. देन A5 फॉर एंड्रोशियम, इट हैज 5 स्टेमन्स. देन G2 ब्रैकेट्स, मतलब ये फ्यूज्ड है और इसके ऊपर की लाइन शो कर रही है कि जो ओवरी है वो इंफीरियर है, नीचे है, रिसेप्टिकल के अंदर है, ठीक है. बाकी पार्ट्स जो है इससे अबव होते हैं और ये नीचे है. लाइन के नीचे होने का मतलब है ओवरी इंफीरियर है. ठीक हो गया. ये कैलेक्स में यहाँ पे फ्यूज्ड का सिंबल बना हुआ है, ये नहीं आएगा. ये जो ब्रैकेट्स हैं ये नहीं आएंगी के 5 के इर्द गिर्द. इसको मैंने इरेज कर दिया ब्रैकेट्स को, ये इस फॉर्म में आएगा. यू कैन सी हियर द कोरिएंड्रम स्टाइवम का ये जो है हैबिट, ठीक है. दिस इज द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी. इसमें आप देख सकते हैं रूट्स, देन द स्टेम, और फिर ये लीव्स हैं इसके जो कि डिवाइडेड हैं बायपिनेट, सॉरी यूनिपिनेट लीव है यहाँ पे, ठीक है. और ये फिर डी कंपाउंड लीव है इसका. और ये आपको इसकी इन्फ्लोरेसेंस, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस नज़र आ रही है. दिस इज इनवोल्यूकर, ठीक है. और ये इसके सीड फॉर्मेशन हो गई हुई है. दिस इज द फ्रूट, जो कि मैंने आपको पीछे पूरी डिटेल में ओपन करके भी दिखाया है. दिस इज गाइनोशियम, पेडिसल, ओवरी, स्टाइलोपोडियम, स्टिग्मा, बायफिड स्टिग्मा, ठीक है. दिस इज स्टाइल. दिस इज टीएस ऑफ ओवरी showing 2 locules. This is 1 locule and this is an ovule. These are the oil glands, जो ये आपको white spots नज़र आ रहे हैं. This black is ovary wall. Then these are the stamens. This is filament. This is the connective. And ये एक dorsal side से है, एक ventral side से है. These are the anther lobes. This is ellus of flower, longitudinal section of flower. You can see the ovary having 2 ovules, ठीक है. This one and this one. This is pedicel. These are the sepals. Then this is style of stigma. This is stigma and these are the stamens. This is petal 1 2. ये हमें इधर petals नज़र आ रही हैं. ये हमें टिप नज़र आ रही है स्टेमन की, ठीक है. ये एक स्टेमन है, ये इसके एंथर्स हैं. ये दूसरा स्टेमन है, ये इसके एंथर है. ये थर्ड स्टेमन है, इसके एंथर नज़र आ रहे हैं. बाकी 2 जो है जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का एक पार्ट है, तो बाकी 2 दूसरे पार्ट में चले गए हैं डेफिनेटली, ठीक है. दिस इज द फ्लोरल डायग्राम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की, और ये जो है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं 2 इसके जो ओव्यूल्स हैं, ये इसमें 5 सेपल्स हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5. और ये इसमें बायलोब्ड पेटल्स हैं इसी तरह से 5. और फिर ये अल्टरनेट इसमें स्टेमन्स प्रेजेंट हैं. और ये इसमें बायकार्पेलरी गाइनोशियम है. ये इसमें बॉक्स आ गया है जो कि एक्चुअली है नहीं, ठीक है. ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है. इसमें भी आप देख सकते हैं 5 सेपल्स हैं, लेकिन जो पेटल्स हैं इसमें दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल पेटल, और ये फिर 2 स्मॉल, और ये 2 उससे भी स्मॉल हैं. और फिर जो अल्टरनेट इसमें भी इसी तरह से स्टेमन्स प्रेजेंट हैं. और ओवरी बिल्कुल इसी तरह से ही है. ये इस पे जो आ गया है इसके लिए सॉरी. और ये आप देख सकते हैं वेजिटेटिव फॉर्म में इसके लीव्स, ठीक है. दीज आर द लीव्स. लैमिना जो है इसका लीफ ब्लेड वो डिवाइडेड है, पिनेटली डिवाइडेड, ठीक है. पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं. और ये बाद में इस फॉर्म में आ जाते हैं डी कंपाउंड लीव्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा
इनकी डिवीजन हो जाती है. दीज आर द सीड्स, ठीक है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स. Then we see the systematic relationships of the family Apiaceae. Engler has put 3 families, that is Araliaceae, Umbelliferae and Cornaceae in the order Umbelliferae. Bentham and Hooker also placed these 3 families in the Umbellales. Then Randall has also adopted the same arrangement as above. Then Hellier recognized only 2 families, that is Cornaceae and the Umbelliferae. He merged the Araliaceae with Umbelliferae. Then Hutchinson included only Umbelliferae family in the Umbellales. He has treated the Araliaceae as a separate order of Araliales derived from the Cornaceae. Then according to Rickett, there are 2 orders, the Umbellales and Cornales. 2 separate orders उसने जो है वो डिज़ाइन किए. The Umbellales consists of Araliaceae and Umbelliferae, while the order Cornales consists of Cornaceae and Nissaceae families. Next is economic importance of the family Apiaceae. This is a very important family from economic point of view. Fruits of some species are used as condiment, while others are of medicinal value. First plant is Apium gravulans Slurry. This is used as vegetable. Roots and seeds are used medicinally. Then Coriandrum stivum, commonly known as coriander or dhania. The fruits and leaves are used as condiment and spice. Fruits are stimulant, carminative, stomachic, tonic. This is actually an aromatic herb. Then Cuminum cyminum, this is Zira. This is a herb commonly grown in Punjab. Fruits are used for flavoring. आप जानते हैं कि हम चावलों वगैरह में ज़ीरा डालते हैं फ्लेवरिंग के लिए, रायता में डालते हैं. देन कैरम कार्वी वलायती ज़ीरा. द फ्रूट्स आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट एंड मेडिसिनली यूज्ड एज स्टमकिक, कार्मिनेटिव. Bunium persicum synonym Carum bulbocastum. This is Kala Zira. The tubers are used as vegetable and seeds are used as spice. जो गरम मसाला होता है उसमें हम काला ज़ीरा पीस के डालते हैं. देन ट्रैकिस्पर्मम एमी, कैरम कॉप्टिमम सिनोनिम है. अजवाइन कॉमनली इसको कहते हैं. फ्रूट्स आर यूज्ड एज स्पाइस एंड मेडिसिनली इट इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट, टॉनिक इन डाइजेशन. डॉकस कैरोटा वार सटाइवा, कैरेट या गाजर. रूट्स आर एडिबल, हम उसको सैलड्स में यूज़ करते हैं, एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है. जूस उसका यूज़ होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. फेरुला एजाफोइटिडा, एजाफोइटिडा कॉमनली इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में या पंजाबी में हम इसको हींग कहते हैं. गम रेजिन obtained from the roots is used in perfumery and for flavoring food products and food as well. Pinch of hing is used in flavoring the food. Medicinally it is used in asthma, cough, indigestion. Anethum gravulans soya, fruits are used as spice and condiment. This is also carminative. Feniculum vulgar, saunf. Fruits are used as spice and condiment. Medicinally this is used as carminative and stimulant. Source of essential oil. The residue left after the formation of essential oil makes a valuable fodder. जो रेजिड्यू बनता है बचता है essential oil extraction के बाद आफ्टर डिस्टिलेशन, वो रेजिड्यू जो है वो वैल्यूएबल फोडर के तौर पे यूज़ होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली एपिएसी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.